Hello students, today we are going to start chapter 12 Heron's formula. In this exercise, in this chapter, we will calculate the area of triangle and area of triangle by using Heron's formula. And what is the Heron's formula? Let A, B and C are the sides of a triangle. There is a triangle whose sides are A, B and C. Clear? So area of this triangle under root S minus A, S minus B, S minus C, where यहाँ S क्या है? सेमी पेरीमीटर, half of sum of all sides. Clear? By this formula we can calculate any type of triangle, चाहे वो isosceles हो, चाहे scalene हो और चाहे equilateral हो, and right triangle. Clear? Now let us start exercise 12.1. The question number first is: a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इस पे इंडिकेट हुआ है स्कूल अहेड, उसकी साइड कितनी है? A है. Heron's formula का यूज करते हुए we have to find area. If its perimeter is 180 cm, तो what will be the area of the signal board? Clear? Solution: each side of the triangular signal board is A. Clear? सेमी पेरीमीटर फाइंड करें. सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू, दिस इज पेरीमीटर, इक्विलेटरल शेप है, ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड हो गया. ठीक है, ये ए ऑल साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, तो a प्लस a अपॉन 2, दिस इज 3a अपॉन 2. Clear? Now area of the signal board. Under root S minus A, S minus B, S minus C. S is 3A upon 2. Now 3A upon 2 minus A, 3A upon 2 minus A, the all sides equal है, तो A, B, C को रिप्लेस करेंगे A से, 3A upon 2 minus A. क्लियर? तो ये जाएगा 3A upon 2. अब 3A upon 2 minus A करेंगे, 3A upon 2 में से A माइनस करेंगे तो 2 LCM आ गया, तो ये क्या जाएगा? 3A minus 2A, that is A by 2. क्लियर? 3A में से 2A लेस करेंगे तो A by 2, तो यहाँ A by 2 इंटू A by 2 इंटू A by 2. क्लियर? तो ये जाएगा 3A इंटू A इंटू A इंटू A रेज़ टू द पावर 4 और 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 16. A रेज़ टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? A स्क्वायर. 16 का स्क्वायर रूट 4 और 3 ये रूट के अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. क्लियर? रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट. क्लियर? Now
The second question is, if its perimeter is 180 centimeter, then what will be the area of the signal board? अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट है, since perimeter is 180 सेंटीमीटर, यानी कि a plus a is 180 सेंटीमीटर, तो 3a equals to 180, so a is equals to 180 upon 3, that is 60 centimeter. Now area of the signal board, area of the signal board, root 3 upon 4 side square, 60 square, तो root 3 upon 4 into 3600, 60 into 60, root 3 upon 4 side square है, यानी कि a square, फॉर्मूला इज रूट 3 अपॉन 4, क्या एरिया निकला है, रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, और रूट 3 के प्लेस पे रूट 3 4, और ए के प्लेस को ए को रिप्लेस करेंगे 60 से, 60 स्क्वायर, क्लियर। तो रूट 3 अपॉन 4 60 स्क्वायर 3600, 4 1 जा 4, 900 टाइम कैंसिल, तो हो जाएगा 900 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यहां पर क्या किया, ए को हमने 60 से रिप्लेस कर दिया, 60 का स्क्वायर 3600 आ गया, 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 900 टाइम, तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। क्लियर। Now question number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? देखो एक फ्लाईओवर है, उसकी वॉल्स का शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, और उस ट्रायंगुलर जो वॉल है उनकी साइड्स कितनी है, 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5000। उस वॉल पर अगर एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी कराती है तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, एक 1 मीटर स्क्वायर का 5000 पर ईयर, 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का 5000 पे करना पड़ेगा। एक कंपनी उसको वॉल्स को 3 मंथ्स के लिए हायर करती है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द वॉल। तो सेमी पेरीमीटर मीटर ऑफ द वॉल, that is S, 122 plus 22 plus 120 upon 2, 122 और 22 144, 144 120 264 upon 2, क्लियर, 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 120 132 मीटर। तो एरिया ऑफ द वॉल equals to under root s minus a, s minus b and s minus c। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करें, s is 132, s minus a 132 minus 122, फर्स्ट साइड इज 122, फिर 132 minus 22, सेकंड साइड इज 22 एंड थर्ड साइड 132 minus 120। क्लियर। अब 132 में से 122 लेस करेंगे 10, 132 में से 22 लेस करेंगे 110, और 132 में से 120 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। क्लियर। अब द प्राइम फैक्टर ऑफ 132,
132 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 66, फिर 2 से डिवाइड करें 33, 2 से डिवाइड करें 3 से डिवाइड करें 11 और 11 से 1, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 132. एंड 10 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, 110 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 11, और 12 के प्राइम फैक्टर हो जाए 2 स्क्वायर इंटू 3. नाउ सी 2 raised to power 2, 1 3, 1 4 and 2 6, 2 raised to power 6, 3 raised to power 2, okay, 11, 5 raised to power 2, 1 और 1 2 and 11 raised to the power 2. ठीक है, जब ये नंबर्स स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 1, 11 रेज़ टू पावर 1 मीटर स्क्वायर. 8 3 24, 24 2 रेज़ टू पावर 3 मींस 8 हो गया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, तो 8 3 24, 24 5 जा 120, 120 इंटू 11, तो 1320 मीटर स्क्वायर. Clear? Now, rent paid by the company for 3 months. क्लियर? देखो 1 ईयर का टोटल रेंट कितना होगा इंटू 5000. 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है वो 5000 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 ईयर का रेंट आ गया. इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मंथ का रेंट आ जाएगा. ओके, और इसको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 मंथ्स का रेंट आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0. अब 330 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹16,50,000 आ जाएगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 3. There is a slide in a park. One of its side walls has been painted some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. वो एक स्लाइड है पार्क में, उसकी one of its side wall has been painted some color with a message. Okay. If the side wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, then find the area painted in color. So we have to find the area of the side. Clear? Area of the triangular wall. Clear? So see solution. Semi perimeter of the wall S is equal to 11 plus 6 plus 15 upon 2. 11 and 6 17, 17 and 15 32, 32 upon 2 16 meter. Clear? अब एरिया ऑफ द wall, area of the wall, under root s minus a, s minus b and s minus c. s is 16, a is first side is 15, second side is 11 and third side is 6. So 16 minus 15 is 1, 16 minus 11
is 5, 16 minus 6 is 10. Clear? Now 16, 2 raised to the power 4. Prime factor of 16. 2 into 2 into 2 into 2 means 2 raised to the power 4. 5 as it is, and 10, 2 into 5. Clear? So 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 2 into 2. The square root of 2 raised to the power 4 is 2 raised to the power 2. तो 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 हो गया 2 रूट के अंदर 2 2 जा 4 4 5 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया पेंटेड इन कलर इक्वल्स टू एरिया ऑफ द वॉल, और एरिया ऑफ द वॉल इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। आंसर। क्लियर? Now question number 4. Find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter. एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी टू साइड्स कितनी है 18 और 10 है, और उसका पेरीमीटर गिवन है 42। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स। क्लियर? तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल is 42 centimeter. Clear? And two sides are 18 centimeter and 10 centimeter. तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी? थर्ड साइड हो जाएगी 42 में 18 और 10, इसको 10 को प्लस करें और 42 में से माइनस करें। 42 माइनस 28, दिस इज 14 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल है। क्लियर? इसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड क्या होगी? और सम ऑफ ऑल साइड्स 42 है, तो इन दोनों को प्लस करो, 42 में से माइनस करो तो थर्ड साइड आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर हो गया 42 अपॉन 2, दिस इज एस। पेरीमीटर इज 42, सो सेमी पेरीमीटर इज 42 अपॉन 2, 21 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो गया? एरिया हमारे पास हो गया अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर? एस इज 21 माइनस ए, फर्स्ट साइड इज 18, सेकंड साइड इज 10 and third side is 14. Clear? 21 में से 18 लेस करेंगे 3, 21 में से 10 लेस करेंगे 11, 21 में से 14 लेस करेंगे 7। तो इसको 21 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। क्लियर? तो 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इज 7, और 11 रूट के अंदर 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? Question number 5. Sides of a triangle are in the ratio of 12, ratio 17, ratio 25, and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स का जो रेशियो है वो 12, रेशियो 17, रेशियो 25 है, और उसका पेरीमीटर 540 है, और वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। सॉल्यूशन। तो लेट, देखो साइड का जो रेशियो है 12, रेशियो 17, रेशियो 25 है, तो लेट करेंगे, लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 12x, 17x and
25x। भाई अगर एक कॉमन नंबर है जो क्या हो गया, कट हो गया, तभी तो रेशियो क्या आया 12:17:25, ठीक है। तो कॉमन नंबर हमने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। अब सिंस इट्स पेरीमीटर is 540 centimeter, so it means this implies to 12x plus 17x plus 25x equals to 540। 12x और 17 29, 29 और 25 कितना हो गया 54x equals to 540, so x equals to 540 upon 54, 10, क्लियर। यानी कि जो कॉमन नंबर था जो कैंसिल हुआ वो क्या हो गया 10 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ फर्स्ट साइड 12x यानी 12 into 10 120 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड 17x 17 into 10 170 सेंटीमीटर। एंड थर्ड साइड 25x यानी 25 into 10 250 सेंटीमीटर, क्लियर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अंडर रूट s minus a s minus b and s minus c। the s is a semi perimeter is s is 540 upon 2 270 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज सेमी पेरीमीटर। s is 270, s 270 minus 120, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड है 170 एंड थर्ड साइड इज 250, क्लियर। तो 270 into 270 minus 120 150, 270 minus 170 100, 270 minus 250 that is 20, clear। prime factor of 270 2 into 3 2 into 5 into 3 into 3 into 3 150 का 2 into 3 into 5 into 5 100 का 2 into 2 into 5 into 5 और 20 का 2 into 2 into 5, क्लियर। प्राइम फैक्टर करेंगे और अब देखिए पावर काउंट करो 2 1 2 3 4 5 and 6 2 raised to power 6 1 3 raised to power 1 2 3 4 4 3 raised to power 4 and 5 raised to power 1 2 3 4 5 and 6 5 raised to power 6, clear। स्क्वायर रूट ऑफ 2 raised to power 6 is 2 raised to power 3, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे, पावर हाफ हो जाएगी 5 raised to power 3, ओके। 8 into 9 into 125, 2 raised to power 3 is 8, 3 raised to power 2 is 9, 5 raised to power 3 is 125, 8 into 125 is 1000 and into 9 9000 centimeter square answer, clear। Now question number 6, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter, find the area of the triangle। तो कोई isosceles triangle है, this is isosceles triangle, इसकी equal side, each of the equal side is 12 centimeter, clear, and the sum of all side that is perimeter is 30 centimeter। solution देखिए, perimeter of an isosceles triangle, triangle is 30 centimeter and each of the equal sides
इज 12 सेंटीमीटर। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस यानी कि थर्ड साइड क्या हो जाएगी, 30 माइनस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12, 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये बेस हो गया, क्लियर। दिस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ सेमी पेरीमीटर 30 upon 2, that is as 15 centimeter. Now its area is under root s minus a, s minus b and s minus c. S is 15, 15 minus 12, 15 minus 12 again, और third side is 6, 15 minus 6, clear। 15 minus 12 is 3, 15 minus 12 is 3, 15 minus 6 is 9, clear। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि अगर 15 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर में 3 इंटू 3 रूट 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्लियर।